Today we will see the introduction to key, important topic, important theory topic, as well as important from the numerical point of view and from the marks point of view. Theory may come for 2 marks or for 4 marks, and numerical may come for 4 marks or 6 marks. Mainly in I scheme the numericals come for 6 marks. Okay, now what is a key? You can see the different diagrams are shown in the figure. In the first pair, the side view and the front view of the key shaft and hub is shown. The joint which is made with the help of the key, the complete diagram, shaft, key and hub. And in the second figure, the 3D view of the 3 parts are shown. Okay, in first diagram you can see the different dimensions of the key. It is given with the help of width, W, small letter W, width of the key, small letter T is the thickness of the key, and small letter L, which is visible in the front view, it is length of the key. You can see that it is slightly taper, the key is slightly taper. So if the key is inserted between the spline or the recess, the slot for the key which is provided on the shaft and hub, and if the key is inserted between them, then the shaft, key and hub will make a compact part, like one integral part, and whatever will be the torque and the RPM available on the shaft will be given to the hub also. Okay, so key is the machine element which is used to connect the transmission shaft to the rotating machine element like pulley, gear or sprocket. And in 3D view you can see what will be the design of the key. You can see the recess provided into the shaft and the recess provided into the hub. Okay, now key is inserted between the hub and the shaft in order to prevent the relative motion between them, and in order to transmit the torque and the RPM available also. Okay, and it is inserted parallel to the axis of the shaft. You can see the length of the shaft, length of the key is parallel to the axis of the shaft, and in 3D view also you can see that the key is parallel to the axis of the shaft. Okay, now it is a temporary fastening element. And the keyway, what is the keyway? It is a slot or the recess in the shaft or in the hub of the pulley to accommodate the key. Functions of key, advantages and disadvantages of keyed joints. Okay, so there are 2 functions. The primary function of the key is to transmit the torque from shaft to the hub or the mating element. Okay, जिसके साथ उसको कनेक्ट किया हुआ है, शाफ्ट के साथ में जिसको कनेक्ट किया है. इफ़ यू हैव डन द प्रैक्टिकल्स ऑफ द ऑटोमोबाइल, सो वहाँ पर तुम लोग देख सकते हैं कि गियर बॉक्स में जो मेन शाफ्ट होती है उसके ऊपर लगे होते हैं द हब और उसके ऊपर गियर्स फिट होते हैं. सो इट इज़ फिटेड थ्रू द की. ओके, सो जो भी टॉर्क एंड आरपीएम शाफ्ट पर होगा वो गियर्स को ट्रांसमिट होता है. सो ये प्राइमरी फंक्शन है की का. एंड द सेकेंडरी फंक्शन है टू प्रिवेंट द रिलेटिव रोटेशनल मोशन बिटवीन द शाफ्ट एंड द मैटिंग एलिमेंट. Okay, so these are the 2 main functions of the key. Now what are the advantages? Simple है, छोटा सा डिज़ाइन होता है इसका, और डिज़ाइन भी जो उसका मैन्युफैक्चरिंग भी सिंपल है. कॉम्पैक्ट उसके एडवांटेजेस में आता है. कॉम्पैक्ट, नो स्लिप, एक पॉजिटिव ड्राइव बनाता है ये, इसमें कोई स्लिप का चांसेस नहीं है. एंड कॉस्ट वाइज, बिकॉज मटेरियल कंजम्पशन इज लो एंड द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस इज सिंपल, सो कॉस्ट वाइज इट इज लो इन कॉस्ट. सो दीज आर द एडवांटेजेस ऑफ द की जॉइंट्स. एंड डिसएडवांटेजेस आर टेम्पररी कनेक्शन है. ओके, अगर की फेल हो गया द connection, the joint will fail. Okay, and weak, it fails quickly because you can see the as compared to the shaft and the hub, the dimensions of the keys are very less. Okay, छोटा सा होता है ये, so वो it may fail. अगर जितने के लिए, जितने टॉर्क ट्रांसमिशन के लिए इसको डिज़ाइन किया गया है, उससे ज़्यादा अगर टॉर्क उसके थ्रू ट्रांसमिट होगा तो की में फेल. वही थर्ड पॉइंट है, नो प्रोटेक्शन अगेंस्ट ओवरलोड. नाउ शाफ्ट गेट्स वीकन ड्यू टू कीवे. जो स्लॉट कीवे बनता है शाफ्ट पर और हब पर, उसकी वजह से स्ट्रेस कॉन्सेंट्रेशन जो है वो बढ़ता है, क्योंकि उसके जो कॉर्नर्स रहते हैं उसकी वजह से जो इरेगुलरिटी आती है इन द क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द शाफ्ट एंड द हब, उसकी वजह से स्ट्रेस कॉन्सेंट्रेशन होता है. सो शाफ्ट गेट्स वीकन ड्यू टू कीवे. नाउ विल सी
Now we'll see the types of keys. There are various types of keys. In that first one is the sunk key. Actually ये जो types बनी हुई है ये किस बेसिस पे बनी हुई है मैं तुमको पहले बता देती हूँ, ठीक है। अगर की जैसे कि डायग्राम में बताया हुआ है, एक रेक्टेंगुलर संक की के लिए डायग्राम बताया हुआ है, ठीक है। सो जो की का जो रीसेज है, की के लिए जो स्लॉट बनाया हुआ है वो शाफ्ट पर भी होगा और आधा हब में रहेगा, ओके। अगर दोनों पर कीवे बनाया हुआ है, सो ऐसी कीज़ को हम लोग संक की बोलते हैं, ओके। कभी कभी जो कीवे होता है वो सिर्फ हब में होता है, शाफ्ट के लिए नहीं होता है। शाफ्ट जो प्लेन एक नॉर्मल सर्कुलर क्रॉस सेक्शन होती है थ्रू आउट, उसके ऊपर कोई अलग से कीवे नहीं बना होता है, ठीक है। ऐसी केसेस में जो कीज़ आती है उसको सैडल की बोलते हैं, ओके। एंड थर्ड कैटेगरी होता है डिज़ाइन वाइज के की अलग से बनाकर इंसर्ट नहीं की जाती है, बल्कि जो शाफ्ट और हब होता है उसमें ही स्प्लाइंस, अगर तुम लोगों ने स्प्लाइंस देखे होंगे गियर बॉक्स में या किसी मशीन के पार्ट्स में स्प्लाइंस बने होते हैं, जो डायमेंशन की स्प्लाइंस होते हैं शाफ्ट पर, वही सेम साइज़ के स्प्लाइंस इंटरनल स्प्लाइंस होते हैं हब पर बने हुए होते हैं, ठीक है। तो जब शाफ्ट और हब जो है वो उसका जब जॉइंट बनाया जाता है तो वो जो स्प्लाइंस और स्लॉट्स ये जो है आपस में मैच होते हैं, ओके। जो प्रोजेक्शंस होते हैं वो स्लॉट्स के साथ में मैच होते हैं और इस तरह से जॉइंट बनता है, ठीक है। सो उसमें वो इंटीग्रल पार्ट जो की होता है वो इंटीग्रल पार्ट ही होता है शाफ्ट एंड हब का। ये थर्ड कैटेगरी होती है, ठीक है। नाउ विल सी द फर्स्ट कैटेगरी, दैट इज द संक की। यू कैन सी द संक की in which the half of the thickness of the key fits into the keyway on the shaft and the remaining half thickness fits into the keyway on the hub machine parts such as pulley or gear, okay। so keyway जो है वो हमको shaft और hub दोनों में बनाना पड़ता है। now there are various types of the sunk key in which the first category is the rectangular sunk key. if the cross sectional area of the key is a rectangular in shape, उसका width and thickness होएगा, ठीक है। तो और width and thickness सेम नहीं होगा, it will be rectangular in shape, then such sunk keys are called rectangular sunk key and its application is for gear and pulley mounted on the shaft. ये कैटेगरी के लिए rectangular sunk key होती है। you can see the diagram, you can see also the taper, 1/100 का taper होता है। डिज़ाइन के टाइम हम जनरली ये taper कंसीडर नहीं। नेक्स्ट कैटेगरी ऑफ द संक की इज स्क्वायर की। कोई डायग्राम नहीं बनाया हुआ है यहाँ पर, बट यू कैन ईजिली अंडरस्टैंड द विड्थ एंड द थिकनेस ऑफ द की विल बी सेम। ऐसी संक की जिसकी क्रॉस सेक्शनल डायमेंशन में विड्थ एंड थिकनेस जो है वो दोनों सेम होती है। यू कैन सी द एम्पेरिकल रिलेशन गिवन, ठीक है। विड्थ एंड थिकनेस का जो है वो शाफ्ट के डायमीटर के साथ में एम्पेरिकल रिलेशन होता है। रेक्टेंगुलर की में भी ये रिलेशन दिया हुआ था और यहाँ पर स्क्वायर की के लिए भी ये दिया हुआ है, d/4 होता है। नाउ नेक्स्ट इज द जिब हेडेड संक की। ये भी रेक्टेंगुलर इन क्रॉस सेक्शन होती है, बट इसमें जिब हेडेड में क्या रहता है कि जिब हेड बना होता है, ठीक है। यू कैन सी द 3-dimensional व्यू एंड ऑल्सो द फ्रंट व्यू ऑफ द जॉइंट इज गिवन, ठीक है। डायग्राम जो है वो वहाँ पे दिया हुआ है पेज पर। जिब हेड की वजह से क्या होता है कि उसका रिमूवल विल बी ईजी, ठीक है। उसको इंसर्ट करना और रिमूव करना दोनों जो है वो आसान हो जाता है, बिकॉज हेड जैसा वहाँ पे प्रोजेक्शन बना होता है। और ये जनरली ये की जो होती है उसमें भी टेपर होता है, 1/100 का टेपर होता है, ओके। now empirical relation for width and the thickness is also given on this page. now advantages क्या है इसका? advantages क्या है कि taper surface results in wedge action and increases the frictional force and the tightness of the joint. ये taper का ये benefit है। और जनरली जितनी भी संक की होती है वो सब टेपर होता है 1/100 का, तो ये सबके लिए ये एडवांटेज सबके लिए एप्लीकेबल है। बट द टेपर सर्फेस इज प्रोवाइडेड फॉर इजी रिमूवल, पर्टिकुलरली विथ जिब हेड की वजह से रिमूवल इंसर्शन दोनों becomes easy, okay। now application, it is used where the key is to be removed frequently. ऐसी केसेस जहाँ पर कीज़ जो है वो मतलब डिसमेंटलिंग असेंबलिंग जो है वो फ्रिक्वेंटली होता है, वहाँ पे जिब हेडेड की यूज़ होती है। सो जिब हेड की वजह से इसका इंसर्शन एंड रिमूवल विल बिकम ईजी। नेक्स्ट कैटेगरी ऑफ द संक की इज फेदर की, ठीक है। यू कैन सी द डायग्राम, फ्रंट व्यू, साइड व्यू एंड 3-dimensional व्यू। ऑल द डायग्राम्स आर शोन ऑन दिस पेज, ओके। फेदर की में क्या डिफरेंस होता है कि अब तक की जो तुमने संक की देखी है उसमें संक की ना शाफ्ट ना हब किसी के साथ में फिक्स की हुई नहीं होती है, बट फेदर की ये कैटेगरी है जिसमें या तो वो शाफ्ट या तो फिर हब के साथ में
फिक्स की हुई होगी. यू कैन सी द काउंटर हेडेड स्क्रू जो है वहाँ पर बताए गए डायग्राम में. जैसे यहाँ पर ये जो डायग्राम दिया हुआ है इसके अंदर ये जो की है ये शाफ्ट के साथ में फिट की हुई है. ओके, सो ये जो एडवांटेज इसका क्या है फेदर की का, कि देर इज एक्सियल मोशन पॉसिबल बिटवीन द मैटिंग पार्ट्स. मतलब शाफ्ट और उसके ऊपर जो हब है उसका एक्सियल मूवमेंट पॉसिबल है, बिकॉज जो है वो की तो ऑलरेडी फिक्स की हुई है किसी एक पार्ट के साथ में. तो उसकी वजह से जो टॉर्क ट्रांसमिशन है उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है और साथ में ही हमको थोड़ा सा एक्सियल मूवमेंट भी मिलता है. सो इसका एप्लीकेशन वहीं पर होता है जहाँ पर ये स्लाइडिंग वाला जो ये मूवमेंट है वो रिक्वायर्ड है, वहीं पर वो उसका एप्लीकेशन होता है. यू कैन सी द पॉइंट्स ऑफ एप्लीकेशन. It is used where the parts mounted on the shaft are required to slide along the shaft, such as clutches or gear shifting mechanism. उसमें इस तरह का यूज़ होता है. ठीक है, इट इज़ एन अल्टरनेटिव अरेंजमेंट टू स्प्लाइंड कनेक्शंस. ठीक है, जो स्प्लाइन वाला जो मैंने तुमको थर्ड कैटेगरी बताई है कीज़ की होती है, जिसमें स्प्लाइंस बने हुए होते हैं शाफ्ट और हब पर. शाफ्ट पर एक्सटर्नल एंड हब के लिए इंटरनल. ठीक है, तो अगर उतना डिज़ाइन नहीं करना है और सिंपल रिक्वायरमेंट है, सो यू कैन गो फॉर द फेदर की. उतने स्प्लाइंस नहीं बनाना है तो यू कैन गो फॉर फेदर की के थ्रू से हम लोग वही सेम एडवांटेजेस गेन कर सकते हैं. नेक्स्ट कैटेगरी ऑफ द संक की इज वुड रफ की. द डायग्राम इज शोन. डायग्राम देख के ही समझ में आ जाता है कि इसका डिज़ाइन कैसा होगा. ठीक है, सेमी सर्कुलर इन शेप होती है और ये जो सर्कल की कर्व वाला जो पार्ट है ये वाला पार्ट शाफ्ट में जाता है. मतलब शाफ्ट में जो रीसेस रहेगा की के लिए उसका शेप भी सेमी सर्कुलर रहेगा. ओके, सेमी सर्कुलर शेप होता है उसका. Keyway in the shaft is in the form of a semi-circular recess with the same curvature as that of the key. Okay, so what is a wood rough key? It is also a sunk key in the form of an almost semi-circular disc of uniform thickness. ओके ना, ये और उसका जो ऊपर का फ्लैट वाला पार्ट रहेगा दैट विल गो इन द कीवे ऑफ द हब. द मेन एप्लीकेशन फॉर वुड रफ की जो ये कहाँ पे यूज़ होती है, जहाँ पे शाफ्ट जो है वो टेपर्ड होती है. ठीक है, वहाँ पर यूज़ होती है. बिकॉज उसका एडवांटेज वुड रफ की का ये है कि ये सेल्फ अलाइंड होती है. टिल्ट होकर ये सेल्फ अलाइनमेंट ले लेती है. ठीक है, सो इसलिए जो टेपर्ड शाफ्ट होती है वहाँ पर वुड रफ की यूज़ होती है फॉर जॉइनिंग. ओके, नाउ व्हाट आर द एडवांटेजेस में फिर से यही पॉइंट आएगा कि इट इज़ यूज्ड ऑन द टेपर्ड शाफ्ट बिकॉज इट कैन अलाइन इटसेल्फ बाय स्लाइट रोटेशन इन द सीट. एक्स्ट्रा डेप्थ ऑफ द की इन द शाफ्ट प्रिवेंट्स इट्स टेंडेंसी टू स्लिप ओवर द शाफ्ट. इट परमिट्स ईजी रिमूवल ऑफ द पुलीज फ्रॉम द शाफ्ट. ठीक है, ये ऐसा शेप होने की वजह से उसका रिमूवल बिकम्स ईजी. बिकॉज उसको थोड़ा सा टिल्ट किया तो कैसा होता है कि वो गैप के अंदर फ्री हो जाती है. ठीक है, उसको थोड़ा सा टिल किया तो गैप में फ्री हो जाती है. उसकी वजह से उसको रिमूव करना, उसको निकालना जो है वो आसान हो जाता है. नॉट डिसएडवांटेजेस, ये जो एक्स्ट्रा डेप्थ है ऑफ द कीवे इन द शाफ्ट, इसकी वजह से स्ट्रेस कॉन्सेंट्रेशन बढ़ता है और शाफ्ट का स्ट्रेंथ कम होता है. इट डज़ नॉट परमिट एक्सियल मूवमेंट एंड इस टाइप की कैटेगरी में एक्सियल मूवमेंट पॉसिबल नहीं है. जैसा कि फेदर की में पॉसिबल है वैसा वुड रफ की के लिए पॉसिबल नहीं है. Now application, it is used on the tapered shaft in machine tools and automobiles. It is used for transmitting moderate torque especially in automotive engineering. Okay, ये इसके एप्लीकेशन. ओके, तो अभी मैंने जो 5 कैटेगरी डिस्कस की है वो पांचों कैटेगरी संक की थी, जिसमें जो रीसेस बना होता है फॉर इंसर्टिंग द की वो आधा शाफ्ट में और आधा हब में अवेलेबल होता है. नाउ द नेक्स्ट कैटेगरी ऑफ द की इज़ द सैडल की. सैडल की में क्या होता है कि कीवे जो है वो कीवे का जो रीसेस है कीवे जो है वो शाफ्ट पर नहीं बना होता है, वो सिर्फ हब में होता है. ओके, और उसकी भी 2 कैटेगरी है, फ्लैट सैडल की एंड हॉलो सैडल की. यू कैन सी द डायग्राम में दोनों बना के बताए हुए फ्लैट सैडल की एंड हॉलो सैडल की. ठीक है, दोनों में डिफरेंस जो है वो डायग्राम देख के ही समझ में आ रहा है कि फ्लैट सैडल की में जो की है उसकी क्रॉस सेक्शन जो है वो फ्लैट है, फ्लैट फॉर द हब, फ्लैट फॉर द शाफ्ट. ठीक है, तो शाफ्ट के साथ जो मैटिंग पार्ट्स आएगा उसका की का जो सरफेस रहेगा जो शाफ्ट के साथ मैच होगा वो भी फ्लैट होता है. फ्लैट होने की वजह से देर इज़ द टेंडेंसी ऑफ द स्लिप. ठीक है, और हॉलो सैडल की में क्या होगा कि जो सरफेस शाफ्ट के साथ मैच होने वाला है की का उस पर वैसा ही कर्व बना हुआ होता है जैसा कि कर्व
जो डायमेंशन जो कर्व शाफ्ट का होता है वैसा सेम, तो उसकी जैसे क्या होता है, फ्लैट होने का जो स्लिप होने का जो टेंडेंसी रहता है वो कम हो जाता है। ओके, दोनों तरह की जो सैडल कीज़ है ये लो पावर ट्रांसमिशन के लिए, जहाँ पे लो या लाइट ड्यूटी जो एप्लीकेशंस होते हैं वहाँ पर ही ये यूज़ होते हैं। ओके, सो फ्लैट सैडल की fits in the keyway for hub only. Keyway is absent on the shaft. In such keys, the keyway is absent on the shaft. Okay, flat saddle and hollow saddle application, they are suitable for light duty or low power transmission as the power is transmitted due to friction. ठीक है, यहाँ पे उतना एरिया नहीं मिलता है की का। ठीक है, जो मेनली ट्रांसमिशन है इट इज़ मेनली बिकॉज ऑफ द फ्रिक्शन। सैडल की इज यूज्ड एज टेम्पररी फास्टनिंग इन फिक्सिंग एंड सेटिंग इसेंट्रिक पार्ट्स, कैम्स एक्सेट्रा। नाउ नेक्स्ट कैटेगरी इज द राउंड की। राउंड की है ये, जो देखो ये संक की जैसा ही है, बस ऐसा है कि इसमें जो क्रॉस सेक्शन ऑफ द की विल बी circular. Okay, so half circular recess will be available in the shaft and semicircular recess will be available in the hub to accommodate the round keys. Okay, the diagram is shown on this page, diagram बनाकर बताया हुआ वहाँ पे, and its application it is also used for low power drive, low torque transmission, low power drive के लिए ये use. Now the next and the most powerful category of the की जॉइंट इज द स्प्लाइंस। स्टार्ट में इंट्रोडक्शन के टाइम मैंने तुमको बताया है, अब तुम डायग्राम में उसको इजीली देखकर समझ सकते हैं। द स्प्लाइंस आर प्रोवाइडेड ऑन द शाफ्ट, ठीक है, और सेम उसकी साइज के इंटरनल स्प्लाइंस विल बी गिवन ऑन द हब। ठीक है, इसका क्या मेन एडवांटेज है, एक तो इसका जो टॉर्क ट्रांसमिशन कैपेसिटी हाईएस्ट होता है, सबसे मोस्ट पावरफुल की जॉइंट में ये काउंट होता है। ठीक है, the spline is a group of keyways cut on the periphery of the shaft. It is a group of the keyways. Separate कोई अलग से की बना के insert करने की ज़रूरत नहीं है। The remaining portion of the shaft material between the keyways forms a number of equidistant keys inbuilt with the shaft. In other words, keys are made integral with the shaft. ये मैंने तुमको पहले भी बताया कि ये इंटीग्रल जैसा हो गया। ठीक है, the most powerful key joint है ये। ठीक है, सच शाफ्ट आर कॉल्ड स्प्लाइन शाफ्ट्स। इस तरह के अगर कीवेज बने हुए तो उसको स्प्लाइन शाफ्ट बोलते हैं। दे आर यूजुअली हैव 4, 10 और 16 splines. Projections on the spline shaft engage with the corresponding recesses in a spline hub. जो उसकी साइज का जो हब होगा उसके अंदर प्रोजेक्शंस जो है वो रिसेसेस में फिट हो जाएंगे और इस तरह से किट जॉइंट बनाएंगे। एप्लीकेशंस, दीज स्प्लाइंस आर यूज फॉर पावरफुल ट्रांसमिशन ऑफ वेरी हाई ऑर्डर एंड ऑल्सो प्रोवाइड एक्सियल मूवमेंट, और एक्सियल मूवमेंट भी प्रोवाइड करता है। ठीक है, सो फ्रॉम ऑल पॉइंट ऑफ द व्यूज ये सबसे पावरफुल जॉइंट है। प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस ऑफ द स्प्लाइंस में बी सीन इन गियर शिफ्टिंग मैकेनिज्म यूज्ड इन ऑटोमोबाइल गियर बॉक्सेस। Now the factors to be considered while selecting the type of key, कौन से टाइप का हमको की चाहिए। अभी तुम लोगों को थोड़ा बहुत थियरी समझ कर सुनने के बाद में ये समझ में आया रहेगा कि अगर लो पावर ट्रांसमिशन सो वी कैन गो फॉर द सैडल की, हाई वेरी हाई पावर ट्रांसमिशन है, टॉर्क ट्रांसमिशन है और स्लाइडिंग मूवमेंट ऑल्सो रिक्वायर्ड, तो उस टाइम पे विल गो फॉर द स्प्लाइन कीज। और अगर लो पावर ट्रांसमिशन है एंड स्लाइडिंग is also required, then we'll go for the feather key. Okay, so इस तरह से अलग अलग टाइप की हम कीज सिलेक्ट कर सकते हैं based on the application. So now what are the different factors which we have to consider while selecting the type of the key? The power to be transmitted, second the tightness of the fit, next the stability of the connection, and next the cost wise जो है वो कौन सा feasible है। Now next is the considerations in the design of the key when we will design। अभी तुम लोगों को आगे next lecture में मैं design of the sunk key जो है वो डिस्कस करने वाली हूँ, the different strength equations। ठीक है, so what are the कंसीडरेशंस, तो मैं तो उसमें सिर्फ क्रशिंग फेलियर और शेयर फेलियर ये दो बताने वाली हूँ, बिकॉज जो फॉर्मूलेज है ये इन दो बेसिस पर है। ठीक है, बट देर आर डिफरेंट पॉइंट्स लाइक पावर टू बी ट्रांसमिटेड, द टाइटनेस ऑफ द फीट। जब तुम न्यूमेरिकल अटेम्प्ट करोगे तो पावर टू बी ट्रांसमिटेड ये पहले तुमको कंसीडर करना पड़ेगा। द डायमेंशन, द साइज ऑफ द शाफ्ट जो है ये भी कंसीडर करनी होती है। The tightness of the fit, the stability of the connection, cost, crushing failure, shear failure of the key, and the material of key and the shaft should be chosen such that the key is weaker than the shaft। ठीक है, हमको इस तरह से सिलेक्ट करना है कि की का जो मटेरियल रहेगा उसका स्ट्रेंथ जो है वो शाफ्ट के मटेरियल से थोड़ा कम होना चाहिए। अभी ये पॉइंट क्यों आया है, बिकॉज अगर वो उससे ज़्यादा रहेगा सो वो जो है वो उसके अंदर वो मतलब उसमें वो प्रेस होकर की जो है वो शाफ्ट के मटेरियल में प्रेस होकर वो जो रीसेस है उसको बढ़ाएगा।
ठीक है, तो वो ना हो उसके लिए की का मटेरियल जो होता है वो स्लाइटली वीकर होता है फ्रॉम द मटेरियल ऑफ द की के टॉपिक में एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो हमेशा जी स्कीम के भी क्वेश्चन पेपर्स में आया है, और आई स्कीम के जो सैम्पल पेपर और जो एक एक्चुअल में पेपर हुआ है स्कीम का, वो दोनों पेपर्स में ये क्वेश्चन आया ही है। दैट इज़ द इफेक्ट ऑफ द कीवेज ऑन द स्ट्रेंथ ऑफ द शाफ्ट। ठीक है, तुम लोगों ने स्ट्रेस कॉन्सेंट्रेशन सीखा इन द चैप्टर नंबर 1, ठीक है, और सॉम सब्जेक्ट में भी सीखे। तुमको पता है कि वेन एवर देर इज़ द इरेगुलरिटी इन द क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ एनी पार्ट देर इज़ द स्ट्रेस कॉन्सेंट्रेशन। ओके, जब भी एरिया जो है वो इरेगुलर होता है, उसमें कुछ अप्स एंड डाउन्स आते हैं, वो कुछ चेंजेस उसमें आते हैं, तो उसकी वजह से स्ट्रेसेस की जो स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है वो रीडिस्ट्रीब्यूट होता है आगे। ठीक है, तो उसकी वजह से स्ट्रेस कॉन्सेंट्रेशन जो है वो बढ़ता है। जहाँ पर एरिया जो है क्रॉस सेक्शनल एरिया सबसे कम होगा, वहाँ पर सबसे ज़्यादा स्ट्रेस कॉन्सेंट्रेशन होता है। ओके, नाउ द की जो है वो एक रीसेस है, एक स्लॉट है जो शाफ्ट और हब पर बनाया हुआ होता है। ठीक है, सो ऑब्वियसली जहाँ जितने एरिया के लिए कीवे होगा उतने एरिया के लिए क्रॉस सेक्शनल एरिया जो वो रिड्यूस हो गया, सो उसकी वजह से जो लोड कैरिंग कैपेसिटी होती है ऑफ द शाफ्ट वो रिड्यूस होती है। ओके, नाउ दिस इज उसका जो मेन रीज़न है, देर आर टू रीजन्स, द स्ट्रेस कॉन्सेंट्रेशन नियर द कॉर्नर्स ऑफ द कीवे एंड द रिडक्शन इन द क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द shaft. Okay, so in other words, the torsional strength of the shaft is reduced because of the keyway. एंड ये इसको मेजर करने के लिए जो एक रिडक्शन फैक्टर होता है, द रिडक्शन फैक्टर, उसके लिए वहाँ पे कोई फॉर्मूला भी दिया हुआ है। अगर क्वेश्चन जो है वो 6 मार्क्स या 4 मार्क्स के लिए आता है, तो अभी ये टॉपिक जो है वो छोटा सा है, तो उसको एक्सटेंड करने के लिए तुम ये फॉर्मूलेज वगैरह वहाँ पे लिख सकते हैं। ठीक है, सिंपल फॉर्मूला ई इज इक्वल टू दिस, और जो अल्फ़ाबेट्स वो फॉर्मूले में यूज़ है वो अल्फ़ाबेट्स का मीनिंग भी वहाँ पर दिया हुआ है। ठीक है, सो इट इज़ यूजुअली अज्यूम दैट द स्ट्रेंथ ऑफ द कीड शाफ्ट इज 75% ऑफ द सॉलिड शाफ्ट। मतलब 25% जो है वो स्ट्रेंथ कम हो जाता है बिकॉज ऑफ द कीवे। शाफ्ट का जो है, अगर सॉलिड शाफ्ट लेंगे और अगर एक की बनी हुई शाफ्ट, की के लिए रीसेस बना हुआ शाफ्ट लेंगे, ठीक है, तो की वाली शाफ्ट का 75% जो है 75% ही होगा सॉलिड शाफ्ट का उसका स्ट्रेंथ। ओके, नाउ जो ई का वैल्यू जो होता है वो सेफ, इट शुड बी लेस देन 0.75, जो है वो 0.75 से कम होना चाहिए स्मॉल लेटर ई का वैल्यू। ओके, ना यहाँ पे एक नोट भी दी हुई है कि हॉलो सैडल की एंड टेंजेंट की जो है ये ऐसी होती है जिसमें कीवे से कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। अभी तुम लोगों ने सैडल की सीखा है, सैडल की में जो शाफ्ट पर कीवे या रिसेस बनाई हुआ नहीं होता है, इसलिए सैडल की वजह से शाफ्ट की स्ट्रेंथ पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ओके, सो दिस इज़ द थियरी टॉपिक related with the key. I have covered all the topics, the theory topics related with the key. Now in the next lecture I will discuss the design of the key, the strength equations of the key.